الحمد للہ وکفى وسلام علی عبادہ الذین اصطفى اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وانکحوا الایام منکم والصالحین من عبادکم وإمائکم ان یکونوا فقراء یغنہم اللہ من فضلہ واللہ واسع علیم رب اشرح لي صدری ويسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی رب زدنی علما سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم اللهم صل علی محمد وعلى آل محمد كما صليت على ابراہیم وعلى آل ابراہیم انک حمید مجید اللهم بارک علی محمد وعلى آل محمد كما بارکت علی ابراہیم وعلى آل ابراہیم انک حمید مجید۔ محترم سامعین کرام، ہم اور آپ نکاح کی مجلس میں ہیں۔ میں نے ایک آیت پڑھی ہے سورہ نور سورہ نمبر 24 آیت نمبر 32۔ نکاح کے تعلق سے چند باتیں آپ کے سامنے رکھنی ہیں۔ الحمدللہ نکاح شادی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، اور اس سنت کو زندہ کرنے کے لیے ہمیں اور آپ کو ہمیشہ کوشش کرتے رہنا چاہیے، اور کوشش کرتے رہیں الحمدللہ۔ لیکن کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ اس سنت کو زندہ کرنے کے لیے کئی سنتوں کو ہم اور آپ مردہ کر رہے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں شادی ہوتی تھی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی پتہ نہیں چلتا تھا کہ کسی کی شادی ہو رہی ہے۔ آج ہمارے اور آپ کے یہاں چھوٹی موٹی شادی ہوتی ہے تو وہ بھی بہت بڑی شادی لگتی ہے۔ بیٹی پیدا ہوتے ہی فوراً بیٹی والا شادی کے لیے سوچنے لگتا ہے، جبکہ پڑھائی لکھائی کے لیے اور اس کی لمبی زندگی کے لیے سوچنا چاہیے، لیکن وہ شادی کے لیے سوچنے لگتا ہے۔ تو اپنے یہاں جو دام دہیج کا مسئلہ ہے، بیل بادشاہ کی طرح جس طرح منڈی میں دیکھتے ہیں بولی لگتی ہے، اس کا اتنا، اس کا اتنا، اس کا اتنا، تو اپنے سماج میں بھی بولی لگتی ہے۔ لڑکا اگر ڈاکٹر ہے تو اس کو کتنا ملے گا بتائیے آپ ہی، انجینئر ہے تو کتنا ملے گا بتائیے آپ ہی، سرکاری جاب والا ہے تو کیا ملے گا ہمیں اور آپ کو معلوم ہے، اور اگر مولوی صاحب ہے تو فری میں۔ تو جو ڈاکٹر صاحب ہے ان کی بڑی اہمیت ہے، انجینئر صاحب کی بڑی اہمیت ہے، اور جس کا سرکاری جاب ہے اس کی بڑی اہمیت ہے۔ میرے بھائیوں، ہمیں اور آپ کو شادی کرنی ہے۔ ابھی ایک شادی امبانی کی شادی کی ٹکر میں ہے اور وائرل بہت ہو رہی ہے، اور آپ لوگوں نے سنا بھی ہوگا۔ اس کا نام ہے خان سر کی شادی۔ خان سر نے، پٹنہ والے خان سر نے ابھی شادی کی ہے۔ اربوں کھربوں روپیہ وہ لے سکتے تھے اور لڑکی والا دینے کو تیار تھا، اور الحمدللہ اس کے ذریعے کتنے غریب بچے پڑھ لکھ کے آگے نکل گئے، ان کو سرکاری جاب نہیں ملا۔ لیکن خان سر نے 4 شریف لیا ہے، صرف قرآن شریف، مصلی شریف، پنکھا شریف، وہ دیہات والا پنکھا، وہ جو ہوتا ہے لکڑی والا پنکھا شریف، اور ایک پانی پینے کے لیے سراہی شریف۔ خان سر نے صرف 4 شریف لیا ہے۔ ڈاکٹر عبدالغنی کوفی، علماء ان کو جانتے ہیں، نیپال کے بہت بڑے عالم ہیں، وہ مجمی ہیں۔ انہوں نے آرٹیکل لکھا ہے خان سر کے اوپر کہ خان سر جیسا آدمی جو دنیا کے لیے اتنی کوشش کر رہا ہے، مولویوں کو تو سب سے آگے آنا چاہیے۔ تو یہاں جتنے علماء بیٹھے ہیں وہ بھی اعلان کریں ہم آپ صرف 4 چیز لیں گے، وہ 4 لیے تو ہم ایک بھی نہیں لیں گے۔ اور صرف علماء لوگ اعلان کر دینا ایسا کہ بھئی ایسی شادی اگر ہوگی تو ہم شریک ہیں، اور اگر نہیں ہوئی تو ہم شریک نہیں ہیں۔ جس میں ڈھول باجا بجے گا، لین دین ہوگا، اس میں ہم شریک نہیں ہیں۔ کھانے پینے کا مسئلہ ہوگا، ہم اس میں شریک نہیں ہیں۔ بڑے بڑے مسائل ہیں میرے بھائیوں۔ جا کے غریب لوگوں کو دیکھیے، ان کی بچیوں کی شادی کا مسئلہ ہے، سود پر پیسے لا رہے ہیں، بھیک مانگ کے لا رہے ہیں، کہاں سے لا رہے ہیں، پوری زمین بیچ کے لا رہے ہیں، ہمیں اور آپ کو کھلا رہے ہیں، اور ہم اور آپ کھانے میں بھی عیب نکال رہے ہیں۔ کاش عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسا نکاح ہو جائے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی دعوت نہ ملے۔ حدیث کے اندر آیا، صحیح بخاری کتاب میں لکھا، حدیث نمبر 5155، عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات ہو گئی۔ پوچھا عبد الرحمن شادی کر لی ہے؟ بولے ہاں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم شادی ہو گئی۔ اور دیکھیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پوچھ رہے شادی ہو گئی۔ آپ میں سے بہت سارے بھائی حج اور عمرہ کرنے گئے ہیں، الحمدللہ، اللہ سب کو حاجی بنا دے، زور سے بولیے آمین۔ 4 سال ہم لوگ بھی مدینہ شریف میں ہیں الحمدللہ۔ مسجد نبوی جتنے دور میں ہے، پورا مدینہ شریف اتنا ہی تھا۔ اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بلا کے لیے آتے کہ نکاح آپ ہی پڑھا دیجیے۔ اب دیکھیں کہاں سے لوگ آ رہے ہیں الحمدللہ۔ لیکن اسلام کے اندر شادی میں جو سادگی ہے، صحابہ سے سیکھیے۔ عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شادی ہوئی، بڑے مالدار صحابی، اس لیے میں مالداروں سے اپیل کرتا ہوں کہ شادی سادگی کے ساتھ آپ کو کرنا ہے۔
अगर आप लोग खड़े हो जाना कि नहीं भाई एक ही आइटम बस, 20 आइटम नहीं, अच्छा खा लिए, जब खिलाने की बारी है तो वही सुन्नत याद आ रही है, वाह रे वाह। कुछ लोग इस टाइप के भी हैं, खिलाने की बारी आई। अब्दुर्रहमान बिन औफ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बड़े मालदार साहबी हैं, तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा कितना दिए हो, तो उन्होंने बता दिया कितना मैंने मोहर दिया। इस्लाम के अंदर जो शादी है, लड़की का खर्च 0 है और लड़के का खर्च 2 है, एक महरदैन देना। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया बारकल्लाह औली मलो की शादी, अल्लाह बरकत दे, वलीमा जरूर करना, गर्चे बकरी ही क्यों ना हो। ये क्यों कहा जा रहा है बकरी ही क्यों ना हो? बड़े मालदार साहबी अगर वो 100 ऊँट भी काट दें तो उनके लिए कुछ कमी नहीं है, लेकिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब उनके लिए दुआ करते हैं तो बकरी का लफ्ज लाते हैं, अल्लाह बरकत दे, वलीमा करना, गर्चे बकरी ही क्यों ना हो। इस्लाम के अंदर शादी के अंदर जो सादगी है, अगर सब मालदार लोग ठान ले तो अल्हम्दुलिल्लाह बड़ा अच्छा हो जाए। तो एक चीज़ और है अपने यहाँ, ये बकरी पर मुझे एक चीज़ याद आ गई। कुछ लोग शादी तो सादगी के साथ कर लेते, लेकिन उनका वलीमा दिखाने वाला होता है। माशाल्लाह कितने लोग आए थे? 10,000 लोग आए थे वलीमे में, 20,000 लोग आए। आइटम कितना था वलीमे का? 20-25 आइटम था, मिठा कई तरीके का था। अल्हम्दुलिल्लाह मेरे भाइयों, वो सुन्नती वलीमा कब होगा जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वलीमा था। एक हदीस के अंदर आया, सही बुखारी किताब सलाह हदीस नंबर 371, सफिया बिन्त हुई जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीवी हैं, हम मोमिनों की माँ हैं, उनका वलीमा कैसा हुआ है? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शादी की उनसे, तो लोगों से कहा आप में से जिसके पास जो चीज़ है वो लेके आ जाइए। तो कोई खजूर ला रहा है, कोई घी ला रहा है, इस तरीके से लेके आ गए और उसको मिला के मलिका जो था उस जमाने का कुछ वो बनियात बना दिया। रावी कहते फकान वलीमत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कि बस यही जो हलवा बना था यही रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वलीमा है। बोलिए हम और आप राजी होंगे ऐसा वलीमा करने में? अरे मौलवी साहब क्या बात कर रहे हैं आप, ऐसा वलीमा हो सकता है क्या, सुन सकते हैं क्या? इसलिए मैं उलमा से पहले कहता हूँ कि उस सुन्नत को जिंदा करने के लिए हमें और आपको आगे बढ़ना पड़ेगा, तभी हो पाएगा। लोग मजाक बहुत उड़ाएंगे लेकिन कोशिश करनी पड़ेगी तभी होगा। अपने यहाँ एक चीज़ और हो रही है, बस मेरा जो वक्त है 2-4-5 मिनट और है, मैं अपनी बातें रख दूँ। ये शादी के ताल्लुक से बच्चे बड़े हो गए, शादी क्यों नहीं कर रहे? अरे मौलवी साहब पाँव पे कहाँ खड़ा हुआ है, तो अभी कौन से पैर की जरूरत है भाई? अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा खासा है। नहीं मौलवी साहब पैसे वाला पैर होना, अल्लाह की कसम कहता हूँ जिंदगी गुजार दीजिएगा, पैसे वाला पैर कभी हो नहीं सकता, चाहे जो भी हो जाए। रहम कीजिए, अपने बेटों पर रहम कीजिए, बेटियों पर रहम कीजिए और खानदानी चीज से उठिए। कुछ लोग खानदानी में एकदम जकड़े हुए हैं, जब शादी होगी तो यही होगी। क्यों जकड़े हुए? इस्लाम के अंदर तो एक ही खानदान है, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। मूसा अलैहिस्सलाम की शादी कैसे हो गई? कुछ नौजवान ऐसे हैं, मुझे बोले एक दो नौजवान के मौलवी साहब हमारी शादी हो ही नहीं रही है। बोले क्यों भाई? हम जिनके पास भेजते हैं तो वो बोलते हैं आपके पास 2 चीज है क्या? वो 2 चीज क्या आपके पास घर है? अरे भाई 25 साल का नौजवान खुद का घर कैसे होगा? अप्पा जब 50 साल के हुए तो घर बना है, तो मैं 25 साल ही में अपना घर बना लूंगा। कुछ लोग ऐसे बेटी नहीं दे रहे। अच्छा 1 लाख कमाते क्या? अब अभी कहाँ से 1 लाख की नौकरी मिल जाएगी? इसलिए मौलवी को लोग जल्दी अपनी बेटी नहीं देते, बहुत परेशानी हो रही ढूंढने में। 1 लाख है क्या? नहीं। अब मूसा अलैहिस्सलाम के वाक़यात में हमारा गौर से पढ़े, सूरह क़सस सूरह नंबर 28 आयत नंबर 15 से आयत नंबर 28 और 29 तक पढ़िए। मूसा अलैहिस्सलाम की दुआ मशहूर है, हम और आप भी दुआ करते रहे, रब्ब इन्नी लिमा अंज़लता इलैया मिन खैरिन फ़क़ीर। ये हर चीज़ के लिए फिट होने वाली दुआ है, नौकरी के लिए भी, बीवी के लिए भी, शौहर के लिए भी। तो एक जगह पे एक साहब ने मुझसे मजाक कर लिया, अब मौलवी साहब से भी मजाक कर सकते, तो मौलवी साहब ने भी मजाक कर लिया। तो कहा मौलवी साहब ठीक है, जिनकी शादी एक ही का चक्कर है तो ये दुआ में सेट हो जाएगी, अगर किसी को चाहिए 2 और 3 और 4 तो क्या ये दुआ काम करेगी? मैं बोला आप कोशिश करके देखिए, अगर लग गई तो लग गई, नहीं लगी तो आपका नसीब, लेकिन कोशिश तो करना है और पढ़ते रहना है। लेकिन मूसा अलैहिस्सलाम ने ये दुआ पढ़ी और उनका माशाअल्लाह उनका फायदा हो गया। तो घर गए तो क्या हुआ, होने वाले ससुर जी ने उनको बुलाया। इसलिए अल्हम्दुलिल्लाह कोई काम आए या ना, लेकिन ससुर जी बहुत काम आते हैं। और अगर मूसा अलैहिस्सलाम के ससुर जी जैसे
शुएब अलैहिस्सलाम या शुएब नामी ने एक आदमी मिल जाए तब तो फायदा ही फायदा है, अल्हम्दुलिल्लाह। और यहाँ एक चीज और, अब आप लोग क्या ये रिवाज है कि नहीं, लेकिन कहीं कहीं भाई ये रिवाज है कि लड़की वाले बैठे हुए हैं, लड़का वाला चल के आएगा हमारे यहाँ, तब शादी करने वाला, चाहे हमारी बेटी की उम्र जितनी भी हो जाए। मेरे भाइयों, कुरान करीम की शायद को और कीजिए, उस शुएब नामी ने एक आदमी ने कहा मैं चाहता हूं कि अपनी दोनों बेटियों में से एक बेटी का निकाह आपसे कर दूं। आप पूछिए खानदान कुछ, आप किस खानदान से हैं, कितना कमाते हैं, नंबर 3 आपके पास घर है क्या? उन बेचारे को पता ही नहीं कि होने वाला दामाद वक्त का नबी होने वाला है, क्या पता। इसलिए मेरे भाई अपनी बेटी दीनदार को दीजिए, मालदार के चक्कर में मत रहिए। मालदार गरीब भी हो सकता है और दीनदार मालदार भी हो सकता है, लेकिन शर्त है कि आप मेरी बेटी से निकाह करेंगे, लेकिन मेरे घर पे आपको 8 साल या 10 साल रहना पड़ेगा। अब देखिए, बेटिया की अहमियत इतनी ज्यादा है, बीवी की अहमियत इतनी ज्यादा है, लेडीज की अहमियत इतनी ज्यादा है कि हमें और आपको ससुराल में भी मनाने के लिए जाना पड़ेगा। और कभी कभार अगर ससुराल में रह गए, कुछ लोग जाके बस जाते हैं कुछ महीनों के लिए, तो लोग परेशान कर देते हैं, जोरू का गुलाम हो गया, बीवी का नौकर हो गया, अरे यहीं आके बसा होगा। जी नहीं, जिस तरह हम चाहते हैं कि हमारे माँ बाप की खिदमत हमारी बीवी करे, हमारी बीवी भी चाहती है कि जरूरत के है तो उनके माँ बाप की खिदमत हम करें। और फिर आखिर वही हुआ, मूसा अलैहिस्सलाम की शादी हो गई, 10 साल बाद है। मेरे भाई, और उस आखिर में दोनों के लिए है कि अब आप दोनों की नई जिंदगी शुरू हो रही है, और एक ऐसी जिंदगी जिसके अंदर 2 चीज हमेशा रखिएगा, एक शुक्र और एक सबर, और हमेशा तारीफ। जैसा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा गया, सही बुखारी के अंदर आया कि आप किससे ज्यादा मोहब्बत करते हैं, तो सीधा कहा आयशा, यानी बीवी का नाम ले लिया। इतना बड़ा मजमा है, हमें और आपको तो हिम्मत होगी ही नहीं कि मेरी बीवी बड़ी अच्छी है, लेकिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या कहा, आयशा। फिर उसके बाद क्या कहा, उसके बाद कौन, तो कहा अबूहा, अबू बकर नहीं कहा, यानी बीवी की इज्जत ऐसी की कहा मेरी बीवी आयशा, और कहा उनके अब्बा, ससुर जी का नाम भी नहीं लिया, बस इशारे में काम किया। अगर हमारी और आपकी जिंदगी जो है ऐसी हो जाए तो देखिए जन्नत बन जाएगा। बस माशाअल्लाह, ससुर जी तो लाखों में थे, अल्हम्दुलिल्लाह। तो अपनी जिंदगी को गुजारने के लिए, घर को जन्नत बनाने के लिए हमें और आपको सबको लेके चलना पड़ेगा, माफ करना पड़ेगा, शुक्र और सब्र की जिंदगी गुजारनी पड़ेगी। और हम और आप दुनिया में है, जन्नत में तो है नहीं, तो टेंशन भी आएंगे, परेशानी भी आएगी, सब कुछ झेलते हुए चले जाना है और टेंशन नहीं लेना है, हमेशा टेंशन फ्री रहिए तो फायदा होगा। ये चंद बातें मैंने आप लोगों के सामने रखी। निकाह को आसान कीजिए, शादी को बिल्कुल आसान कीजिए, वलीमा भी आसान कीजिए, उस सुन्नत पर अमल कीजिए। और जो पैसे खर्च हो रहे हैं, बस आखिरी बात बयान करके रुखसत होगा। एक जगह पे शादी हुई है अभी, पुलिस ने केस किया है, कुछ लड़की वाले को भी पैसा वोट काटता है, उसने होने वाले दामाद को सिर्फ और सिर्फ 2 करोड़ 56 लाख रुपया कैश दिया है। पुलिस ने केस कर दिया उसके ऊपर। और जो काजी साहब ने निकाह पढ़ाया, कभी कभी हम लोग के मुंह में पानी भी आ जाता है, लेकिन हम लोग उम्मीद से हैं। होने वाले काजी साहब का भी पता है कि सिर्फ और सिर्फ 11 लाख रुपया खजियाना दिया है ये निकाह पढ़ाने का। और जिसने जूता और चप्पल चोरी किया, उस चोर को भी 11 लाख रुपया मिला है। तो मेरे भाई, कुछ लड़के वाले भी दिखाते हैं। अल्लाह के लिए प्लीज कुछ दीन का काम कर लीजिए जो सबका जारिया हो। बस ये चंद बातें थी। दुआओं के साथ हम आपसे रुखसत होते हैं। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह हम सबको किताब और सुन्नत पर चलने की तौफीक दे। अल्लाह खुराफात से दूर रखे, शादी सादगी के साथ अल्लाह करने की तौफीक आमीन। इंशाअल्लाह फिर मुलाकात होगी। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।